Welcome students to the session of panoramic physics. Today we will deal with dimensions. What are dimensions? I have this pointer in my hand. You will say, sir, it is the pointer and it is along the dimension. It has one dimension only, that is along the x axis, y axis, किसी भी axis में आप इसे रख सकते हैं, लेकिन basically it has dimension of length, इसकी एक length है. Similarly your whiteboard, इसमें आप देख रहे हैं, it has two dimensions. One dimension is of length and another is beats. Again length and again beats. तो इसकी कितनी dimensions होगी? 2. और अगर हम किसी वॉल्यूम की बात करते हैं, वाटर टैंक की, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक की या रेक्टेंगल की, it has 3 dimensions. Sorry, क्यूब की, not rectangle, but when we talk about a cube or cuboid, it has 3 dimensions. या अपने हम अगर रूम की बात करें तो it has 3 dimensions. It has length also, width also, height also. Dimensions है क्या? Students, the one of the most important topic in the physics. क्योंकि dimension की help से फिजिक्स के बहुत सारे लॉज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, दिस वर्ल्ड इज आल्सो 3 dimension जो हमें विजिबल है. देयर आर मेनी अदर dimensions आल्सो, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर अदर क्वांटम फिजिक्स एंड ऑल. बट टुडे वी आर बेसिकली डीलिंग विद द dimensions chapter in a classical world of physics. Dimensions of a physical quantity are the powers or exponents, are the powers or exponents to which the units of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. So, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स. dimension of a physical quantities, like अगर हम लेंथ की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, मास की बात करें, they all are physical quantities. जब हम उनकी पावर्स को रेज करते हैं और एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं, to which the unit of base quantities, here your base quantities basically represents your quantities of mass, length and time, are raised what to represent a derived unit of that quantities. Example, जैसे हम बात कर रहे थे लेंथ की, लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास को हम दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट द वे ऑफ डिमेंशन. ऐसे हम डिमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं. लेंथ को हम इस ब्रैकेट से विल राइट हियर L, मास के केस में m, and place of time we will write here t. Now I am talking about, for example, I want to know about area. Area क्या है? 2 times length, length into width. You will say only this thing, that is L into B, or meter into meter, meter square. Its unit is meter square, but as I said, length के dimensions क्या हैं? L. Another also, it has not 2 length in it. It means raised to power 2. So similar dimension of a physical quantity. Here physical quantity is length, are the power to which the units of base quantity are raised. So this base quantity की unit कितने आ गए? Powers. Power is 2. And if it is volume, what will happen? 3 times of length. Any kind of length, width, height, but basically है तो वो सारा length ही. So 3 times length is basically L power 3. So if we say what is the dimension of volume, you will say it is L power 3. But इसको dimensions को represent करना है अगर हमने mass, length और time के रूप में, तो हम देखते हैं वॉल्यूम वाले फैक्टर में ना तो मास है ना ही टाइम है, बट इट हैज लेंथ फैक्टर. तो उसे बोलते हैं डिमेंशनल फार्मूला को एक्सप्रेस कैसे करते हैं. लेट्स सी हाउ टू एक्सप्रेस द डिमेंशनल फार्मूला. हाउ टू एक्सप्रेस द डिमेंशनल. इससे हमें क्या पता चलता है? 2 चीजें याद रखना स्टूडेंट्स. हाउ एंड विच, द एक्सप्रेशन विच स्टेट्स हाउ एंड विच, the expression which states how and which physical quantities, how and which base quantities कह लो, physical which base quantity of physical quantities क्या करेंगे? represent a physical quantity, represent a physical quantity, a physical
Again I am saying students, very important words, how and which, कौन कौन सी और कैसे रिप्रेजेंट करेंगी व्हाट फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. एक्सप्रेशन विच स्टेट्स हाउ एंड विच बेस क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट, विच बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, उसे कहते हैं हम, इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला को शॉर्ट फॉर्म में यू कैन राइट डी डॉट एफ, डायमेंशनल फार्मूला. इन एनी वे यू कैन राइट इट. एग्जाम्पल, अब हमने बात की थी लेंथ की, एरिया की और वॉल्यूम की. मान लीजिए वॉल्यूम इज 3 times लेंथ एंड यू नो ऑलरेडी, इसे हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था. लेकिन अब अगर हमें डायमेंशनल फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिप्रेजेंट करना है, व्हाट विल राइट हियर, यू वांट टू नो हाउ, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर डायमेंशनल फार्मूले में. m0 l3 m0, this is the way we represent it. and which physical quantities, किस क्वांटिटी के रूप में आया ये सिर्फ लेंथ के रूप में आया. इसका मतलब हुआ हेयर मास इज 0 एंड टाइम के यहाँ पे कोई भी, these are not involved, मास और टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ इन्वॉल्व थे. अब वैसे बात कर लेते हैं वेलोसिटी की. वेलोसिटी जनरल हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड की बात कर लो, अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम. बोथ केस में यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड. डायमेंशन ऑफ मीटर किसकी यूनिट से, मीटर लेंथ की यूनिट से. टाइम की यूनिट्स क्या थे, सेकेंड्स इज द यूनिट ऑफ टाइम. सो हाउ वी राइट डायमेंशन, LT माइनस, बिल्कुल सही. लेकिन जब हम इसे पूरा एक्सप्रेस करेंगे MLT के रूप में, तो m0 l1t माइनस. When you have to solve the numericals, जिन न्यूमेरिकल्स में काफ़ी कुछ सॉल्व करने को होगा, when there are so many factors in that numerical, then you can directly take like that. आप डायरेक्टली इस चीज़ को LT-1 उठा सकते हो. लेकिन जब आप बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट वेलोसिटी और मास और लेंथ इन टर्म्स ऑफ MLT, तो आपको वहाँ सभी पावर्स के बारे में बताना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है और कौन सा फैक्टर नहीं है. लाइक here m is 0, L1 is minus 1. This is your dimensional formula. And what is dimensional equation? Very simple. There is nothing technical in it. Dimensional equation में कुछ भी technical नहीं है. Dimensional equation में there is nothing technical about it. कैसे? See, अब मैंने velocity की बात की, तो velocity equal to, बस dimensional formula को आप फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर दीजिए. डायमेंशनल फार्मूला को आप फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर दीजिए. दैट इज कॉल्ड योर डायमेंशनल इक्वेशन. अगर आप फिजिकल क्वांटिटी यानी वेलोसिटी, कोई भी फॉर दैट रीजन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, then it is known as dimensional equation. अब हम बात करेंगे कुछ डायमेंशंस की, सिंपल क्वांटिटीज की डायमेंशन डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन डेवलप अ ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट मैटर की. आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्यू मोर फिजिकल क्वांटिटी. स्टूडेंट्स, डायमेंशंस को याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं. अगर आपको कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस पता है, जैसे आपको मालूम है एरिया इज़ L/2 एंड वॉल्यूम इज़ L/3, बट लाइकवाइज हमारी फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज़ योर फोर्स. फोर्स आपकी थर्स्ट को भी फोर्स बोलते हैं, टेंशन को भी फोर्स बोलते हैं. अगर आप प्रेशर की बात करें, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो लाइकवाइज फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है. फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं वर्क की, वर्क इज आल्सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें बेसिकली अप्रोच कैसे करना है. पहले सिंपल से शुरू करते हैं, जैसे डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी. दैट इज इसकी डायमेंशंस यू विल राइट लाइक m and here volume is L/3. It comes out to be m L-3.
or you can write, if you want to write in form of MLT, it will be your density. Now I asking, अगर आपको कोई भी बहुत सारी डायमेंशन याद करनी पड़ेंगी, बेसिक ट्रिक क्या है? आपका अपना ट्रिक हो सकता है. आई एम शेयरिंग बेसिक वे हाउ टू रिमेंबर देम. सी, यू नो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, छोटा डिस्टेंस हो चाहे बहुत बड़ा डिस्टेंस हो, dimensions always represented by letter L. And for time it will be t. It comes out to be LT minus 1. ये dimensions हैं आपकी velocity की. Okay. Now, what is acceleration? Acceleration is velocity upon time. Velocity is LT minus 1. Time is your t. It comes out to be LT minus 2. This is the dimensions of acceleration. Now, what is force? फोर्स आपने पढ़ा हुआ है सिंस योर 9th क्लास में भी आपने जाना है फोर्स के बारे में. तो फोर्स क्या होती थी? मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ. खैर उसके लिए हमारे पूरा यूनिट 3 है, लेकिन बेसिकली डायमेंशंस को याद रखने के लिए फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. सी स्टूडेंट्स, अब आपको अगर एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आती हैं इतनी तो आप याद रख ही सकते हो, LT माइनस 2, या वेलोसिटी याद रख सकते हो. एक्सेलरेशन नहीं भी याद रहती तो LT माइनस 1. वेलोसिटी भी याद नहीं है तो उसका फॉर्मूले से आप ड्राइव कर सकते हो. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज LT माइनस 1. ठीक है. सो व्हाट इज फोर्स नाउ? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ इट्स वेरी इजी. सी, अब आपको फोर्स की डायमेंशन निकालना इजी है क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला यू नो इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड डायमेंशन ऑफ मास यू विल राइट m, हियर यू विल राइट LT माइनस 2. फोर्स की डायमेंशन बन गई m1 L1 t minus 2. You can write like that also, or you can simply write mLT minus 2. अगर फोर्स की डायमेंशंस आपको वैसे ही याद हो गई, वेरी गुड. नहीं हुई तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है. अब फोर्स से बहुत सारी डायमेंशंस इजीली बन जाती हैं. एग्जांपल, हम बात करेंगे वर्क की, हम बात करेंगे प्रेशर की, हम बात करेंगे फोर्स कांस्टेंट की, and there are many more. Let's see. वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं हम फोर्स कांस्टेंट, या फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट. सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी वर्क force into displacement, pressure force upon area, force constant F upon L, that is force upon displacement. अब आप देख रहे हैं यहाँ सब में फोर्स इन्वॉल्व है, एंड देयर मेनी अदर क्वांटिटीज आल्सो जहाँ पे आपकी फोर्स इन्वॉल्व होती है. ठीक है. तो बेसिकली जब आप बात करते हैं फोर्स की तो सी नाउ, अब कितना इजी होगा आपके लिए इनकी डायमेंशंस फाइंड करना. कैसे? सी, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर mLT minus 2. डिस्प्लेसमेंट इज, मैंने कहा चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डायमेंशन फार्मूला, दैट इज L. अब mL2, बिकॉज और एक्सप्लेन कर देते हैं, हियर इट इज L1, हियर इट इज अगेन L1 एंड T minus 2. जब बेस सेम है तो वी कैन ऐड द पावर्स, इट विल बिकम mL2 T minus 2. दिस इज योर डायमेंशन ऑफ वर्क. ये आपकी वर्क डन की डायमेंशंस है. वैसे ही अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर क्या था? फोर्स अपॉन एरिया. तो अब आप बहुत इजीली से फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज फोर्स? हियर द फोर्स इज mLT minus 2. व्हाट इज एरिया? इट कम्स आउट टू बी mL minus mL1, like that, L minus 2 T minus 2. Next step, mL minus 1 T minus 2. This is your dimensions of pressure. वैसे फोर्स कांस्टेंट की क्या बनेगी? That is force upon displacement. फोर्स कांस्टेंट था आपका फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कांस्टेंट इज फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट. Here length represent डिस्प्लेसमेंट. तो जब भी आप डायमेंशंस को याद रखना चाहते हैं तो मेरा मतलब कहने का ये है,
आपको उसके फॉर्मूलेस पता हो। जैसे अगर आपको वर्क का फॉर्मूला पता होगा, डायमेंशन यू कैन फाइंड इजीली। अगर फॉर्मूलेज याद नहीं है ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज देन इट विल बी टफ फॉर यू। नाउ फोर्स डायरेक्टली अब आप लिख सकते हो mLT माइनस 2, इट विल सेव योर टाइम। Displacement is here, it cancels, we are left with mt minus 2. So this is the way students you could find the dimension of few of the physical quantity। अब एक important quantity है universal gravitational constant, काफ़ी important quantity मानी जाती है ये। इसकी dimension अगर आपको मान लो directly याद है, well and good, नहीं तो I am telling you the way how to find it। See, आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स में जब हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस डिस्कस कर रहे थे, दिस वाज योर जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ फ्रॉम हियर जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू एंड यू नो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। देखो फोर्स के कितने सारे फायदे हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको फोर्स की डायमेंशंस याद हैं तो आप कितनी सारी डायमेंशंस फोर्स की डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी देखो फोर्स की इन्वॉल्वमेंट आ गई इनटू डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज L2 मास m into m that is m2। now what will happen, see here m, when it goes in numerator it becomes m minus 1, this thing becomes, here the power is 1, so 2 plus 1 3 and this is your t minus 2, so m minus 1 L power 3 t minus 2, this is your dimension of universal gravitational constant। आपको ये वैसे ही याद है, well and good। अगर आपको एग्जाम में निकालने को आती है फाइंड द डायमेंशन, देन यू कांट राइट स्ट्रेट। जब शब्द आ गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, देन यू हैव टू follow this procedure। So students, now I will discuss few more dimensions, or one thing you can revise it yourself which involves the dimension of force। आपने रट्टा नहीं मारना है, you have to do one thing that is very clearly, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। और आपको ट्रिक मैंने बता दी है, आपकी कोई और ट्रिक भी हो सकती है, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग या अंडरस्टैंडिंग द डायमेंशंस। तो बेसिक रूल आपको मैंने समझा दिया है कि आपको फोर्स तक तो कम से कम डायमेंशंस याद होनी चाहिए, देन यू आर एबल टू फाइंड मैनी सच डायमेंशंस। आप बहुत सारी डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं।